Yes, ma'am. Yeah, till yesterday we have done covariance. Yeah, I mean till the last lecture we have done standard deviation and covariance. So now we are going to start with calculation of beta. Before that, let me know if you have any doubt related to sums of covariance. No, Do ma'am. you? No, Sure? ma'am. Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So let's start with calculation of beta now. Beta means calculation of risk factor taking consideration into, I mean taking market portfolio into consideration. Okay. So now here market returns and security returns both will be given same as it was given in the sums of covariance. Now while calculating beta, I again need covariance. Why? Because the formula of beta is covariance of RSRM upon standard deviation square n. See, can you see the formula? See, it's written here. Wait, I will note this formula. Yeah. Is it now visible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So covariance RS, actually it should be RS. Huh? Covariance RS RM means the correlation between the difference between two RS and RM divided by standard deviation square n. Okay, so I hope you know what is the formula of covariance. So same formula has to be applied again. What was the formula of covariance? Whole summation of RS minus RS bar into Rm minus Rm bar divided by, now here what you have to do, always remember when beta is there, no? So denominator will be n minus 1. While calculating beta, it will be n minus what? N minus, N minus 1. yes. Now same. This is covariance. This is the numerator. So the formula of covariance is summation of R minus R bar, R minus Rs minus Rs bar into Rm minus Rm bar divided by n minus 1. Okay. Now what you have to do? Standard deviation square n. Now this is denominator. Always remember this is standard deviation of market. M means market. Therefore here you have to consider only and only about market. Okay. You will not take Rs. You will only take Rm. So what is the formula? Whole summation of Rm minus Rm bar the whole square divided by n minus 1. So this is standard deviation. Is it clear everybody? Yes, ma'am. So first step is to understand what is the formula of beta. What is the formula of beta? What is the numerator? Tell me. Covariance of Covariance of R into RM Rs. Rs. whole Rm. divided by Never standard say deviation of multiplied by. Shivani, never say multiplied by. You have to say covariance of RS RN. Covariance of RS RN. Whole okay, ma'am. divided by standard deviation square of market. Means market का जो standard deviation है ना उसका square लेना है. In short. ठीक है, अब ये आपकी फॉर्मूला है, रिपीट करो, बोलो न्यूमरेटर क्या है बीटा का? Covariance R Covariance RS, R RM, होल डिवाइडेड बाय only standard divided by deviations standard standard deviation dividend score. market. standard deviation square m.
M means market. Means we have to take the returns of market, calculate its standard deviation and get it squared. ठीक है, मतलब जो भी आप करोगे वो स्क्वायर में निकालोगे. तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर एम में देखोगे, आर एम माइनस आर एम बार नहीं लिया है मैंने, आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर लिया है. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में जब प्रोबेबिलिटी नहीं होती है तो हम ऐसे ही तो करते हैं, समेशन ऑफ आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1. वैसे हम सिर्फ n करते हैं, बट बीटा कैलकुलेट करते समय मुझे डिनोमिनेटर में n माइनस 1 करना है, दोनों के, कोवेरिएंस के भी और स्टैंडर्ड डेविएशन के भी. इज इट नाउ क्लियर एवरीबॉडी विद द फॉर्मूलाज? Yes, ma'am. या अभी देखो ये कितना सिंपल है आपका सम. देखो आप सम से और क्लियरली समझ जाओगे. फर्स्ट सम देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट बीटा ऑफ द सिक्योरिटी. पहले देख लीजिए, उसके बाद हम नोट डाउन भी कर सकते हैं. ये मुझे नोटेशन रिमूव करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट. देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट बीटा ऑफ द सिक्योरिटी. बीटा मतलब रिस्क फैक्टर. ओके, समझ आ रहा है? बीटा मतलब रिस्क Risk फैक्टर. factor. अभी देखो 5 इयर्स दिए हैं, आर एस दिया हुआ है और आर एम दिया हुआ है. आपको क्या कैलकुलेट करना है? कोवेरिएंस, और सॉरी बीटा. तो बीटा की फॉर्मूला में कोवेरिएंस मुझे चाहिए ही होता है एनीवेज, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए मार्केट का. तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो और वैसे वैसे कॉलम्स बनाओ. उसके पहले जो दिया हुआ है उसके कॉलम्स बनाओ. क्या क्या दिया हुआ है बोलो, कितने कॉलम्स दिए हुए हैं ऑलरेडी? Years and return RS square और security. RM दिया है. वेरी गुड, आर एस एंड आर एम, वेरी गुड. सो पहला कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम इन्होंने सिर्फ आर लिखा है, हम सिर्फ आर नहीं लिखते हैं कभी भी, हम लिखेंगे आर एस. वो स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ आर लिखते थे, आर एंड ई आर. अभी मुझे लिखना है आर एस. ठीक है, तो अभी मैं लिखूंगी आर एस फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम आर एम. ये हो गया 3 कॉलम जो ऑलरेडी दिए हुए थे वो सेम बना लिए. अब मुझे क्या चाहिए कोवेरिएंस में? देखो, समेशन ऑफ आर एस माइनस आर एस बार. तो मैं बना लूंगी एक कॉलम जिसको बोलते हैं आर एस माइनस आर एस बार. फिर दूसरा चाहिए आर एम माइनस आर एम बार. तो मैंने बना लिया आर एम माइनस आर एम बार. जैसे कोवेरिएंस में कैसे 5 कॉलम्स बनाते थे, स्टार्टिंग में वही 5 कॉलम्स है अगर आप कोवेरिएंस के कॉलम्स को मैच करोगे. उसके बाद आर एस माइनस आर एस बार मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एम बार. ठीक है, तो लास्ट नेक्स्ट कॉलम यही बनेगा आपका, जो कोवेरिएंस में लास्ट कॉलम बनता था वो यहाँ पे वही बनेगा, आर एस माइनस आर एस बार वो मल्टीप्लाई बाय आर एम माइनस आर एम बार. अब उसके बाद है ना, ये कोवेरिएंस तो बन गए आपके सारे कोवेरिएंस के कॉलम्स. नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन में देखो, एक ही कॉलम चाहिए आपको, आर एम माइनस आर एम बार. वो हम ऑलरेडी ऊपर बना चुके हैं, फिफ्थ कॉलम. 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम को देखो, आर एम माइनस आर एम बार दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. उसका स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट में मुझे क्या चाहिए? स्क्वायर. आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर. तो आपको लास्ट कॉलम बनाना पड़ेगा आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर. समझ में आया कि कैसे कॉलम्स हाँ मैम, बनाने हैं? समझा. हाँ मैम, समझा. मतलब स्टार्टिंग के कॉलम्स है ना वो सारे के सारे कोवेरिएंस के जैसे बनाने हैं, और लास्ट सिर्फ आपको कौन सा एक कॉलम ऐड ऑन करना है? आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर. The whole square. हाँ. वेरी गुड. ठीक है, अब क्या करना है आपको? सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे. 5 इयर्स है, आर एस की सिक्योरिटी 10 12 15 10 8. आप देखो सब सेम लिखोगे, 10 12 15 10 8. और आर एम भी कॉपी करेंगे, 10 12 11 14 12 11. अब उसके बाद क्या करना है देखो, आर एस माइनस आर एस बार
तो आपको सबसे पहले आर एस का बार चाहिए, मतलब मीन चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होती है आर एस बार की, कोई बताएगा? Summation of RS upon RS N. upon वेरी N. गुड, समेशन Number ऑफ, of year. वेरी गुड, Summation of वेरी गुड, summation of Summation of RS RS upon N. upon वेरी गुड। N. तो समेशन ऑफ आर एस का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ आर एस। तो 55 आपको टोटल दिख रहा होगा, डिवाइड बाय 5। वैसे ही आप निकालोगे आर एम बार। आर एम बार कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ आर एम अपॉन एन। सेम फॉर्मूला जो अभी आर एस के लिए लगाई थी, आर एस बार के लिए, टोटल ऑफ आर एम डिवाइड बाई एन। ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे बीटा की फॉर्मूला। पर बीटा की फॉर्मूला लगाने से कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको न्यूमरेटर भी अलग से निकालना है, डिनोमिनेटर भी अलग से निकालना है। तो पहले निकाल लो कोवेरेंस और फिर निकाल लो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट और फिर लगाओ बीटा की फॉर्मूला। क्योंकि बीटा की फॉर्मूला में न्यूमरेटर में चाहिए आपको कोवेरेंस और डिनोमिनेटर में चाहिए मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो अब क्या करूंगी मैं? कोवेरेंस की फॉर्मूला लगाऊंगी, समेशन ऑफ आर एस माइनस आर एस बार। पर उसके पहले फॉर्मूला तो लगाएंगे, पर उसके पहले कॉलम्स तो कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आप कॉलम्स क्या करोगे? आर एस माइनस आर एस बार। अभी अभी आर एस बार कितना मिला? 11। तो आप क्या करोगे? 10 माइनस 11, 12 माइनस 11, 15 माइनस 11, ऐसे करके आर एस माइनस आर एस बार का आंसर निकालोगे। सेम आर एम माइनस आर एम बार, दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से दो कॉलम्स को? कौन से दो कॉलम्स? R RS minus RS RS minus bar RS bar into into RM minus RM RM minus bar. RS bar. वेरी गुड। मतलब हमको इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम को। तो -1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 -1, 4 इंटू 2 8, -1 इंटू 0 0, and -3 into -1 3, because minus minus will become plus। अब क्या करना है आपको? पूरे कॉलम का टोटल, वर्टिकल टोटल, ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा कोवेरेंस का, होल डिवाइडेड बाय n-1, मतलब 5-1। ठीक है, वैसे भी हम कोवेरेंस की फॉर्मूला में n-1 करते थे, याद है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगी ना अपनी, बस नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन में भी याद रखो n-1 करना है। बीटा के टाइम पे आपको n-1 करना ही होता है। ठीक है, तो अभी देखो 10 अपॉन 5-1 इज 10/4 इज इक्वल्स टू 2.5। ऐसे ही आप निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट की फॉर्मूला क्या होती है? होल समेशन ऑफ आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो आपको चाहिए क्या? मेन आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर चाहिए। तो आपने ऑलरेडी कॉलम बनाया था आर एम माइनस आर एम बार, उसके आंसर्स को स्क्वायर करते जाओ, मतलब 0 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 1। अभी वर्टिकल टोटल करो, क्यों? क्योंकि मुझे समेशन चाहिए। तो आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर, लास्ट कॉलम का टोटल 6। तो आपको न्यूमरेटर मिल गया ये स्टैंडर्ड डेविएशन का 6, होल डिवाइडेड बाय n-1। सो 5-1 मतलब 6/4, मतलब आंसर होगा 1.5। कोवेरेंस का आंसर था 2.5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का आंसर है 1.5। तो बीटा की फॉर्मूला यही तो है, कोवेरेंस का आंसर न्यूमरेटर में, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का आंसर डिनोमिनेटर में। दोनों को डिवाइड करो और आपको मिल जाएगा बीटा, मतलब 2.5 डिवाइड बाय 1.5, आंसर इज 1.67। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई Yes, डाउट यहाँ ma'am. तक? No, No, ma'am. ma'am. No. फर्स्ट सम ही नहीं समझेगा मतलब सारे सम्स नहीं समझ में आएंगे। सो यू ऑल हैव टू बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बीटा, पहले सम से, बिगिनिंग से। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, ma'am.
तो चलो अभी नोट डाउन करो। ये आपका क्वेश्चन है, स्नैपशॉट निकाल लो। ये आपका सॉल्यूशन पार्ट पीछे। चलो कम ऑन, स्नैपशॉट निकाल लिया क्वेश्चन का? Yes, ma'am. ठीक है, सेम कॉलम्स एनीवेज आपको सॉल्यूशन में बने हुए हैं, तो आप क्वेश्चन का यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो पहला सम थोड़ा मैं ओपन रखती हूँ स्क्रीन सॉल्यूशन की, क्योंकि पहला सम है, तो आपको अगर हेल्प लगेगी तो आप यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, कोशिश करके आप खुद से करो, डोंट लुक एट द स्क्रीन, ओके। बट इफ एट ऑल इफ यू गेट कंफ्यूज समवेयर, यू कैन सी एंड आई मीन यू कैन लुक एट द स्क्रीन एंड देन यू कैन सॉल्व। ठीक है, उसके बाद भी Okay, कुछ ma'am. डाउट है तो मुझसे पूछो। Yes, एंड आई एम ma'am. गिविंग यू 5 minutes टू नोट डाउन। 5 minutes, ओके? Yes, ma'am. Yeah, मैम ma'am. मैम ओके, हाँ जी बोलो बेटा। यस मैम। मैम इधर आर एस आएगा ना मैम? यस, इधर जहाँ भी आर एस आपको आएगा ना, आर इन्होंने दिख रहा दिया है नहीं ना, है। जहाँ भी आर दिख रहा है वहाँ आर हाँ। एस लिखो, जैसे कोवरेंस में लिखते थे, वो मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया। ठीक है, यस मैम। आर एस माइनस आर एस बार, यस मैम। यहाँ पे भी आर एस, नीचे फॉर्मूला में भी आर एस आर एम। ठीक है, और यहाँ पे भी आर एस माइनस आर एस बार। ठीक है, समेशन ऑफ आर एस अपॉन एन, जहाँ भी आपको सिर्फ आर लिखा है सिर्फ आर मत लिखो, कोवरेंस में कैसे लिखते थे आर एस आर एम, वैसे लिखो। यस मैम। ठीक है, समझा मैम। यस मैम। सॉल्व करो जल्दी, 5 minutes दे रही हूँ। हैव यू गाइस डन? Yes, यस ma'am. मैम। Okay, now look at the next question. Question number 2. From the following details, calculate beta of the security. See how many years are given. RS is also given, RM is also given. 10 years. Okay, 10 years का information है नीचे क्वेश्चन में ऑलरेडी, क्वेश्चन का पार्ट उन्होंने सॉल्यूशन में ऑलरेडी कॉपी डाउन किया हुआ है। So same figures are there. Okay, so year from 1 to 10, RS column and RM column is copied down from the question. Now RS minus RS bar, we want the next column as RS minus RS bar, next RM minus RM bar, because कोवरेंस की फॉर्मूला में हमको यही कॉलम्स चाहिए थे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा, that is RM minus RM bar multiplied with, sorry, RS minus RS bar multiplied with RM minus RM bar, एंड लास्ट कॉलम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए चाहिए, RM माइनस RM बार द होल स्क्वायर, और सेकेंड लास्ट और लास्ट कॉलम का आपको टोटल भी चाहिए रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको RS बार और RM बार निकालना पड़ेगा। उसकी फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ RS अपॉन एन, और RM के लिए समेशन ऑफ RM अपॉन एन। ठीक है, मतलब RS का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, RM का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसे करके आपको मिल जाएंगे दोनों के बार्स। अब कॉलम्स को पूरा करिए आप, RS माइनस RS बार, RM माइनस RM बार, मतलब एक एक को 11 माइनस 13.2, बिकॉज 13.2 आपका क्या है RS बार। सो अगेन 14 माइनस 11.2, नेक्स्ट थर्ड ईयर का RS इज 18, so 18 minus 13.2, next is 10 minus 13.2, and so on. Similarly, you have to do it with RM minus RM bar. Okay, next column will be, इन दोनों को multiply करेंगे, मतलब example minus 22, sorry it is 2.2, right? हाँ, minus 2.2 into minus 2, so minus minus will become ultimately plus, and answer will be 4.4. Same way you have to do for next 9 years. Okay, and you have to get the total. Total is summation of RS minus RS bar multiplied with RM minus RM bar. So you have to get the total of this column, and that would be the numerator of covariance, 54. And minus 1 means 10 minus 1. So 54 upon 9 is 6. Okay.
नाउ व्हाट यू हैव टू डू, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला लगानी है मार्केट के लिए. सो फॉर्मूला क्या होती है, समेशन ऑफ आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1. मतलब आर एम माइनस आर एम बार का तो होल स्क्वायर चाहिए. तो आपको कॉलम आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है आर एम माइनस आर एम बार द होल स्क्वायर. बस आपको ये वाले कॉलम का स्क्वायर निकालना पड़ेगा. कौन से कॉलम का, आर एम माइनस आर एम बार. मतलब -2 इंटू -2 4, -4 इंटू -4 16 एंड सो ऑन. अब इसका टोटल करना है आपको, वर्टिकल टोटल. वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का न्यूमरेटर हो जाएगा. मतलब आपका न्यूमरेटर हो गया 158 डिवाइडेड बाय, कहाँ गया टोटल, सॉरी नेक्स्ट पेज पे था, मैं नीचे आ गई. 158 whole divided by 10 minus 1. So it would be 158 divided by 9 and the answer would be 17.56. ये आपका डिनोमिनेटर हो गया. न्यूमरेटर आपने ऑलरेडी कोवरेंस कैलकुलेट किया होता 6. So 6 by 17.56. Answer would be, check if your answer is correct, 0.34. Is it clear? Same है. Yes, ma'am. चलो शुरू करो. सेकंड सम शुरू करो. 10 इयर्स का है. ओके. और ये आपका क्वेश्चन है आर एस का कॉलम एंड आर एम का कॉलम. बिगिन विद दिस क्वेश्चन नंबर 2. I'm giving you 5 minutes to start and I'm giving you 5 minutes to complete with the solution part. मुझे बताओ बीटा का आंसर क्या आ रहा है.